Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear student, Yasin Ahmad Mina here, and I am about to start the new lecture, which is related to estimation. So, estimation is a new topic, and since we have covered the topic of central limit theorem, and before that, we have covered the topic of sampling and normal distribution as well. So now it is the time to start preparing ourselves for hypothesis testing concepts. So before entering into the domain of hypothesis testing procedure, here we have to learn something about estimation. And this topic is followed by a question again. What is estimation? So like sampling, uh, the same definition is here. Okay, estimation is a procedure. The estimation of procedure of what? It is a rough calculation of value, number, quantity of extent of something, or even if you want to judge someone by means of his talking style and his body language. So this is also a sort of estimation. So technically speaking, if I give you the task to count all the candies present in this jar, so right now we are not able to count the candies, but to estimate it. Okay. So estimation, as the name suggests, estimation is a procedure. So here we have a process cycle. So basically three terms are here, and these terms are with order. Okay. So first thing come first, which is estimate. And what is estimate? I already told you in my last lecture. Estimate is a sample result. Okay, estimate is a sample result. Like sample mean, sample standard deviation, sample minimum, sample maximum, sample median, sample mode, extra. Okay. So what is estimation? Again, estimation is a procedure. Procedure of what? Procedure of finding an estimator. Basically, this is the proper definition of estimation. एक estimator मालूम करना होता है हमें. Then what is an estimator? Estimator is an estimated population parameter. Always remember that. If we want to describe population parameter, it is population mean, like mu, and the sample estimate is x bar. But not all the time population parameter is the same as sample estimate. Like x bar हमने calculate कर लिया sample के लिए, तो वही population के लिए calculate कर लें तो mu हो जाता है. Sometime population parameter are a bit different, like distribution, parameter of distribution, parameter of regression equation. तो ऐसी सूरत में हमें सैंपल एस्टिमेट की मदद से उन पैरामीटर्स तक पहुंचना होता है. तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p इज अ पैरामीटर. तो इस पैरामीटर तक पहुंचने के लिए हमें जिस एस्टिमेट की जरूरत पड़ सकती है वो इट कैन बी एक्स बार. तो एक्स बार इज अ वे टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटर. ओके, तो हम एक्स बार की मदद से पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेटर बना सकते हैं. तो हाउ वी कैन डू दिस? तो बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसीजर, first I would like to tell it is a process cycle. Estimate goes into estimation, and it came up with the result of an estimator. So these estimators are having types, and these are of two types. Okay, what type of estimators we usually study? The first type of estimator is known as a point estimator. तो पॉइंट एस्टिमेटर की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको दूंगा. असेसमेंट होती है और वो एक सिंगल नंबर में आप हम कर रहे होते हैं, लाइक एन एवरेज. और पॉइंट एस्टिमेटर में हम दो वैल्यूज या वैल्यूज की रेंज नहीं बना सकते, बिकॉज वी नीड अ सिंगल वैल्यू जो कि कॉन्फिडेंट रिजल्ट हो, बाकायदा ऑप्टिमाइज रिजल्ट हो. रिग्रेशन इक्वेशन में अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो आपने ये पढ़ा होगा कि a और b की वैल्यूज को पुट करने पर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है. तो क्या वो a और b की वैल्यूज हम चेंज करते हैं? नहीं, हम थ्रू आउट द फंक्शन सेम रखते हैं. तो वो सिंगल वैल्यूज होती हैं, a की भी सिंगल वैल्यू, b की भी सिंगल वैल्यू. So this could be an example of a point estimator. Okay. Another type of estimator is called an interval estimator. So sometime or most of the time, we love to give our consent in the form of an interval. तो पॉइंट एस्टिमेटर सिंगल रिजल्ट है, इंटरवल एस्टिमेटर एक रेंज है जिसके अंदर ओरिजिनल पैरामीटर लाई करता है. फॉर एग्जांपल, if we want to talk about something which is related to interval estimator, तो
ये बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री वन इज प्रेजेंट इन एन इंटरव्यू, और एचआर का जो इंटरव्यू है, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो सक्सेसफुल हो गई उसके लिए, और बहुत ही अच्छा दिन है उसके लिए। एंड फाइनली जो एचआर का पैनल है, सिलेक्शन पैनल, वो उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि यू आर सिलेक्टेड एंड नाउ प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपेक्टेड पैकेज। तो आप में से कितने लोग हैं जो उस वक्त कहेंगे कि एक्सपेक्टेड सैलरी हमें चाहिए जनाब 3,25,320 रुपये 25 पैसा पर मंथ। अब यहाँ पर थोड़े से हंसेंगे लोग, यकीनन एक सिंगल रिजल्ट तो कोई नहीं देता है इस हवाले से। वहाँ पर ये कहते हैं कि सर 2.5 से 3 लाख तो हो, या 3 से 3.25 लाख के दरमियान तो हो। इसी तरह की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा इंटरवल की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। और सिमिलर टू दिस आई हैव एन अनदर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ पर रियलिटी शोज वगैरह काफी मशहूर हैं और बहुत सक्सेसफुली रन होते हैं वहाँ पर। तो एक शो मैं देखता था वहाँ, वो था, उसका नाम था 10 कदम, इफ यू डू रिमेम्बर दैट शो। तो कामरान सलमान खान वाज अ होस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो उसमें होस्ट बदलते रहे, लेकिन सलमान खान के वक्त मैंने कई उसकी एपिसोड देखी। 10 कदम, तो वो पूरा का पूरा रियलिटी शो, एक प्रोग्राम, एक गेम शो, दैट वाज बेस्ड ऑन इंटरवल्स। तो वो सवाल पूछते थे और कहते कितने परसेंट जो लोग हैं वो बसों में सफ़र करते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद एक आंसर देना होता था। तो शुरू में एग्जैक्टली शुरू में ये जो इंटरवल्स होते थे वो बहुत वाइडर होते थे, तो कोई भी तुक्का चल जाता था, रफ गैस वो काम आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये आ, मरहला बढ़ता था तो रकम जो है इनाम की वो डबल होती रहती थी, और जो मनी है वो ज़्यादा होती रहती थी। तो उसके साथ मसला क्या आता था फिर, जो लोग, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा हुआ है 10 कदम, दे एंडोर्स मी, कि होता ये था कि इंटरवल का साइज छोटा होता चला जाता था। ओके, तो फिर उससे क्या होता था, जाहिर है कि जब मैं इंटरवल एस्टिमेटर पे आऊंगा तो इस चीज़ को मजीद एलिबरेट कर दूंगा एक बार और। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू सम इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन मैं शो कर दूं कि यूज ऑफ एस्टिमेटर, व्हाई एस्टिमेटर्स आर नेसेसरी। So in order to elaborate the use of estimator or importance of estimator, let me show you a distribution. एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने हिस्टोग्राम की शक्ल में शो की हुई है यहाँ पर। तो एजेस ऑफ टीम प्लेयर्स हैं यहाँ पर, यंग टीम प्लेयर्स की एजेस हैं। तो इस पे अगर मैं कोई फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना चाहूँ, और अगर मैं रॉन्ग सेट ऑफ फंक्शन और रॉन्ग सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज करूँ, तो इसके ऊपर फंक्शन कुछ यूँ फिट होगा। So does it seems like an appropriate function fitted on the distribution? No, it is a straight line. Straight line cannot be suitable on this particular type of histogram. We need a bent curve, right? तो सही डिस्ट्रीब्यूशन का चुनाव और सही पैरामीटर्स की एस्टिमेशन अगर हम पॉइंट एस्टिमेटर के थ्रू कर लें तो वी कैन गेट अ फंक्शन लाइक दिस। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पेरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं यूज बाय द हेल्प ऑफ एस्टिमेटर्स। ओके, so that was the importance which was highlighted to you, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि हम एस्टिमेटर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। तो नाउ लेट वी स्टार्ट स्टडीइंग द पॉइंट एस्टिमेटर। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि थोड़े से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, टेक्निकल हैं, लेकिन इफ यू डू सम प्रैक्टिस तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ओके, जो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर सीइंग माय वीडियो you will be able to solve that particular exercise. Okay, so point estimator के आगे लिखा हुआ MLE. MLE stands for maximum likelihood estimator. So these could be a moment estimator, these could be L moment estimator, but right now I am telling you something about maximum likelihood estimator. As the name suggests, maximization, optimization से related होगा कुछ। So maximum likelihood estimator, it is a procedure estimating parameters of any parent population distribution, and for this purpose we need a sample of m observations which is required. So why I am saying m observations again, why not n observations? Because in most of the cases we use some distributions, and like binomial distribution, तो आपको पता होगा binomial distribution के दो parameters होते हैं. First parameter is small n and the second parameter is small p. So since n is already being allocated like a term, like a parameter in binomial distribution, that's why मैं यहाँ पर use करूँगा word the sample of m observations. तो binomial distribution से ही start करूँगा first example को मैं। तो अभी हमें डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, बल्कि हमें प्रोसीजर पे जाना है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एन MLE?
तो प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द सैंपल एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड कि हमें ऑब्जर्वेशंस का सैंपल चाहिए होता है फ्रॉम x1 टू xm। ये डेटा हमें मिल जाता है, मार्केट से मिल जाता है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस है वहां पर अवेलेबल है, सर्वे के थ्रू मिल सकता है हमें, और प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा जो भी हो आपके पास वो डेटा आ जाएगा। एंड देन वी हैव टू डिसाइड which particular distribution is suitable most to be fitted on the sample, क्योंकि हम इस सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके होंगे, लिहाजा हमारे लिए ये डिसाइड करना आसान होगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इस सैंपल पे फिट की जाए। इफ द सैंपल इज डिस्क्रीट तो वी कैन गो फॉर बायनोमियल, पॉइजन, multinomial, geometric, hypergeometric or other distribution. If the data is continuous, then we can go for normal distribution, Weibull distribution, beta distribution, gamma distribution, Rayleigh distribution, जो भी distribution है हम वो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उन MLE उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो कि 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल प्रोसीजर है। तो वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ लाइक्लीहुड फंक्शन। अब ये टर्म आप समझ लें, देखिए यहां पर कुछ लोगों के लिए बहुत टेक्निकल लग रहा होगा उन्हें कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखें आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल बी क्लियर ऑन यू। ओके, तो L for likelihood function notation and x is the random variable and theta is the parameter which we are going to estimate using an estimator. Okay, तो इस तरह से बनता है। जाहिर जो डिस्ट्रीब्यूशन विच वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो उसी के पीडीएफ में x की सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करके सारे सैंपल की हम एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑप्ट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का एक प्रॉब्लम है, इफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन are more than 1, then a multiplicative model will give us a very large result or even infinite in some of the cases. And if the functional values are uh, between 0 and 1, so it will give us a very smaller result, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कम होते चले जाते हैं, फाइनली वो जीरो भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए क्या करें, सिंस वी आर डीलिंग विद अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, तो वी हैव टू टेक लॉग। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक्स आई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लेते हैं, इस पूरे लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग तो वैसे 4 हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो मल्टीप्लिकेटिव अगर वैल्यूज लिखी हुई है उनका लॉग अप्लाई, उनके ऊपर लॉग अप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव थिंग विल बिकम एडिटिव बट इंडिविजुअल लॉग विल बी अप्लाइड। ओके, तो आफ्टर टेकिंग लॉग दिस कुड बी द रिजल्ट। हर फंक्शन के ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के बजाय एडिशन आ जाएगा। एंड देन फाइनली हमें करना ये होगा कि उस पर्टिकुलर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, जो पैरामीटर हमने एस्टिमेट करना है उसकी रिस्पेक्ट से। इसे जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पैरामीटर के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी वो जीरो हो जाएंगी, एंड आफ्टर सेटिंग इट टू जीरो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, और पैरामीटर जो है वो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा। अच्छा, व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑप्टिमाइजेशन? जिन लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट उस वक्त लेते हैं, सेट टू जीरो का मतलब रूट कैलकुलेट करना है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज होकर जो वैल्यू आएगी वो ऑप्टिमाइज वैल्यू होगी, सूटेबल मोस्ट वैल्यू होगी पैरामीटर की, एंड ये इस तरह समझ में नहीं आएगा, वी हैव टू गो फॉर द प्रोसीजर। ओके, तो एज एन एग्जाम्पल आई एम यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन केस। सपोज मेरे पास एक अदद सैंपल आया है और मैं उस सैंपल के ऊपर एक अदद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने का इरादा रखता हूं। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन सबसे पहले हमें चाहिए, तो हमें लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हमें याद होना चाहिए। व्हाट इज द पीडीएफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x is equals to n combination x p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. The same function has been displayed. Okay, instead of using the probability symbol I am using the function notation because
the function, same function notation is being used in the likelihood function. ओके, अब करना क्या है, इसमें हर x वैल्यू की जगह x की इंडिविजुअल वैल्यू सैंपल की पुट करते जाएं और इसे मल्टीप्लाई करते जाएं, तो इट विल बी समथिंग विच इज एक्सपेंडेड, ये कुछ एक्सपेंडेड हो जाएगा फंक्शन। बट हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमें इस पर काम करना है। तो आपके सामने मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में इंडिविजुअल फंक्शनल वैल्यूज, सॉरी इंडिविजुअल सैंपल वैल्यूज एक्स की पुट करके एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बना दिया, एब्रीविएट कर दिया मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा n कॉम्बिनेशन x1 p रेज टू पावर x1 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x1, देन मल्टीप्लाई बाय n कॉम्बिनेशन x2 p रेज टू पावर x2 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचें कि बार बार अगर इस तरह मल्टीप्लिकेटिव वे में हमें लिखना पड़ा तो ये तो लिबोरियस एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे लिए। तो जिस तरह सम अगर दरमियान में प्लस लिखा होता तो प्लस के लिए तो समीशन और सिग्मा की नोटेशन होती है। डू यू रिमेंबर एनी नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल? सोचें जरा, सोच के बताएं मुझे। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया? नो आइडिया, तो आई विल टेल यू कि इन ऑर्डर टू show the multiplicative model we use a notation of pi। याद रखें, जब सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब सारी टर्म्स सम हो रही हैं। अगर ये पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 to m। अब देखिए n कॉम्बिनेशन एक्स आई पी रेज टू पावर एक्स आई 1 माइनस पी रेज टू पावर n माइनस एक्स आई, ये हमारे लिए आसान हो गया। बार बार अगर इफ एनीवन वांट टू यूज द सेम रिप्रेजेंटेशन जो मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई थी आपने लास्ट स्लाइड के अंदर, वही चलाते रहे आप, कोई मसला नहीं, लेकिन इट विल बी इजी फॉर यू टू यूज दिस नोटेशन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन तो आ गया, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ln वी आर यूजिंग नेपेरियन लॉगरिथम, नेचुरल लॉग भी कहते हैं इसे, एक ही बात है, लॉग नेचुरल लॉग हो या कुछ हो, लेकिन प्रेफरेंस होती है डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट में कि नेचुरल लॉग को यूज किया जाए। तो अब यहाँ पर लॉग अप्लाई हो गया। अब ये लॉग की नोटेशन, गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि अगर ये व्हाइट बोर्ड होता तो मैं अलग से आपको समझा देता। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये लॉग जब यहाँ पर एंटर होगा तो ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो पाई की नोटेशन है इसको सिग्मा की नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सारी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं, जब लॉग हर वैल्यू पर अप्लाई हो जाता है, दरमियान में सम आ जाता है, तो वही काम होने लगा है। ये लॉग यहां पर अप्लाई होगा और साथ ही ये नोटेशन पाई से सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, नाउ हियर वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, सिग्मा ln, और यहां पर अब अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो एज इट इज लिखी हुई हैं, बट सी हियर अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग सीम्स टू बी अप्लाइड ओवर हियर। ये लॉग है, लॉग के अंदर तीन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं, तो क्या होगा, अगेन इस सिग्मा के बाद लॉग इन तीन टर्म्स पे भी अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। गुड, देखिए लॉग अप्लाई हो गया n कॉम्बिनेशन एक्स आई पर, लॉग अप्लाई हो गया p रेज टू पावर एक्स आई पर, लॉग अप्लाई हो गया 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस एक्स आई पर, एंड प्लस साइन इज इन बिटवीन। सिग्मा बाहर मौजूद है, ये तीन टर्म्स हैं और ये सम में आ गई हैं। अब मुझे बताएं, इज एनी is there any other property of log seems to be applied on this? सोचें। यकीनन log की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि if log is being taken of a number which is already having a power, तो power will become a coefficient। तो ये xi जो है कोफिशिएंट बन जाएगा, इसी तरह n माइनस xi भी log का कोफिशिएंट बन जाएगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो सी log likelihood function finally gave us this result। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर गौर से देखें, log अप्लाई हो गया, पावर बिकम कोफिशिएंट्स, और ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है 1। सिंस द पावर इज 1, और वो कहते हैं दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन को रास्ता बना लिया, तो सिग्मा भी इसी तरह दाखिल हो जाएगा अब इस जगह पर। दीवार तो है नहीं, कोई पावर तो लगी भी नहीं है, तो सिग्मा विल बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी टर्म प्रेजेंट इनसाइड दिस ब्रैकेट। So in the next step, the situation seems to be like this। अब
इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि सिग्मा अप्लाई हुआ हुआ है आई इज फ्रॉम 1 to m, वो एक्स आई पर अप्लाई हुआ हुआ, ओके। तो जिन टर्म्स में एक्स आई मौजूद है सिग्मा में रहेंगी, और जो टर्म्स में एक्स आई नहीं है वो सिग्मा से बाहर आ जाएंगी, लाइक एल एन पी विल गो आउटसाइड द सिग्मा साइन। इसी तरह n माइनस एक्स आई विल रिमेन्स इनसाइड द सिग्मा नोटेशन, बट एल एन वन माइनस पी विल गो आउटसाइड द सिग्मा नोटेशन in the next slide, and the situation is now this। तो अब ये log likelihood function जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, and now it is the time to differentiate this function with respect to the parameter। अब याद रखिएगा अभी तक हमने सिग्मा अप्लाई किया था एक्स आई पे, ओके, क्योंकि एक्स आई के ऊपर काउंटर चल रहा है, लेकिन चूंकि अब ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट होने लगा है, तो पार्शियल डिफरेंशियल जो होता है वो रिजिड होता है, वो इस मामले में कि वो अदर देन पी को जो देखेगा ना तो ये उसको जीरो कर देगा, उड़ा देगा वो। तो अब देखते हैं क्या होता है। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी एंड सेटिंग इट विद जीरो। तो यहां पर ये चीज मिसिंग है, आप इज इक्वल्स टू जीरो जरूर लिख लीजिएगा, यहां पर होना चाहिए था, यहां पर नहीं है, कोई बात नहीं। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, और आखिर में हमने सेट टू जीरो कर दिया। ऐसे देखिए यहां पर मैंने ये सेट टू जीरो लगाया हुआ है। अब ये जो डावा की नोटेशन है ये हर टर्म पे अप्लाई होगी, जो इनसाइड ब्रैकेट लिखी हुई थी टर्म्स इन तीनों पे अप्लाई होगी। अब आप गौर से देखें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू पी हो रहा है ना, इज देयर एनी पी प्रेजेंट इन दिस टर्म, इस टर्म में है, नहीं है, ये स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा। अच्छा इस टर्म में p मौजूद है, यकीनन ln p है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ln p, ln x 1 अपॉन x, तो यहाँ पर डावा बाय डावा p ln p हो जाएगा 1 अपॉन p, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट, इसके साथ p था लिहाजा ये बच जाएगा। इसी तरह ln 1 माइनस p विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस p, बट चेन रूल विल अप्लाई और 1 माइनस p भी डिफरेंशिएट होगा, तो 1 जब विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस पी जब विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट होगा तो -1 हो जाएगा, एंड दिस सिचुएशन इज मेंशन्ड इन दिस स्टेप। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म में पी नहीं था, ये टर्म जीरो हो गई, सेकेंड टर्म में ln p था 1 अपॉन p हो गया, और समीशन एक्स आई जो है एज इट इज अपनी जगह लिखा हुआ है, और उसके बाद ln 1 अपॉन p, सॉरी ln 1 माइनस p, जब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई हुआ पूरे पर तो ये 1 अपॉन p हो गया, और साथ में चेन रूल की वजह से 1 माइनस p भी डिफरेंशिएट होगा, तो 1 हो जाएगा 0, माइनस p हो जाएगा -1, एंड दिस -1 विल मेक इट माइनस। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो इस पूरी टर्म को हम ले जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगी। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर p। अब इतना काम तो मेरा ख्याल है वीडियो पॉज करके आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो वो मेरी वीडियो को रिज्यूम कर लें, और वीडियो को रिज्यूम करने के बाद देखिएगा सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ करूंगा वो ये कि मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1 माइनस पी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा समीशन एक्स आई से। अब यहाँ पर डेलिबरेटली मैं रेंज को यूज नहीं कर रहा हूँ, जो लिमिट लगी हुई है ना, समीशन एक्स आई से मैं 1 माइनस पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं समीशन एन माइनस एक्स आई से, तो मेरे पास सिचुएशन हो जाएगी यूं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप खुद, if I just multiply summation xi with 1 and summation xi with minus p, तो it will become this। अब देखें दोनों तरफ ये कॉमन टर्म्स नजर आ रही हैं आपको, माइनस पी समीशन एक्स आई, तो इट विल बी कैंसल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बचेगी, समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू पी समीशन एन। तो जब पी समीशन एन बचेगा तो हम यहां से p की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग दिस समीशन n विद समीशन xi। अब देखिए समीशन xi डिवाइडेड बाय समीशन n, अब समीशन xi तो वेरिएबल है, n इज अ कांस्टेंट, तो n जब m टाइम्स सम होगा, यानी n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n m टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर n 3 टाइम्स सम हो रहा हो तो कितना हो जाएगा 3n, अगर n 10 टाइम्स सम हो रहा हो तो कितना हो जाएगा 10n, तो m टाइम्स अगर n को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा m इंटू n, बिल्कुल ठीक। तो फाइनली हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को गौर से देखें, ये हम लोग वी आर अबाउट टू कैलकुलेट
MLE, maximum likelihood estimator for the population parameter P, summation xi upon m into n. बट हमें पता था, शुरू में हमने सैंपल साइज क्या लिया था, सैंपल ऑफ साइज m, तो यकीनन समीशन xi अपॉन m जो है वो बना देगा हमारा एवरेज x बार, जो मैंने शुरू की स्लाइड में मेंशन किया था कि प्रोपोर्शन के लिए x बार चाहिए होता है। अब याद आया आपको? चाहे तो मेरी वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो सिंस समीशन xi अपॉन m इज ऑलरेडी इक्वल्स टू x बार, तो p की जो वैल्यू है वो x बार अपॉन n हो गई। फाइनली this is the maximum likelihood estimator for the proportion P. And now I am giving you the homework to find the MLE for lambda in case of a Poisson distribution we wish to apply on a data. तो Poisson distribution का जो PDF है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। Poisson distribution का PDF होता है e raised to power minus lambda, lambda raised to power x upon x factorial। ये शुरू में मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अगर आप पॉइजन पीडीएफ पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के 3 स्टेप चलाएंगे, यानी लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, लॉग लाइक्लीहुड बनाएंगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो यकीनन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, then in my next video I will also tell you the procedure as well as मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को किस तरह अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ केस में हम ऑप्टिमाइजेशन को किस तरह यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।